Good evening, everyone. Uh, this is Mridula, and I am the project manager at Dakshama Health. Let me introduce you to Dakshama Health. Dakshama Health aims to serve the health and education sector and works on capacity building and awareness generation around health education for the service providers as well as patients and caregivers. Since 2012, Dakshama has successfully conducted several projects in the health space, and the work spans around chronic, non communicable, and rare diseases. Today, Dakshama Health and community of psoriasis supporters that works with the vision to build a strong nationwide patient voice platform for people living with psoriasis and those who support the cause would be conducting this expert session for all the warriors, for all the fighters living with psoriasis. I would like to invite our expert Dr. Dipali, uh, who who is the founder and CEO of her own initiative, the Skin and Hair Clinic at Defense Colony, and she is also adjunct visiting faculty professor at AIMS Rishikesh in dermatology. Dr. Dipali Bharadwaj practices her specialization with all the latest technology in skin and hair treatments, and we warmly welcome you, Dr. Dipali, for this amazing session that we're going to have. Welcome. नहीं जा रहा है. Put it in the wall. Jimmy, wall. Hi, how are you, everybody? And thanks for calling me. First of all, it's a great initiative by the NGO and for the kind of work they're doing. Just 1 second, sorry. So yeah, don't move it. No. Yeah, hi. So it's a great initiative. I'm sorry that not close the door, but thank you. Don't send anybody. So lovely. And psoriasis is something जो जिंदगी भर की एक तरह की हर मरीज के लिए जैसे डायबिटीज हो गया, it's something which affects the person for a very long time and it lasts almost a lifetime for many people with psoriasis or affects somebody else in the family. So it's a great session and the great work done by this NGO. I was very keen to be invited and very happy that Daksham is doing such good work. Thank you, ma'am. We'll now present. Your presentation is here. Yeah. Great. Thank you. Please go ahead. So I think आपी को next करना पड़ेगा. So I'll keep saying next. So as a dermatologist, I must have seen thousands of people. This is how we all age. हमें कोई बीमारी हो या ना हो. This is just a slide to tell you. हर age group में मैंने देखा है wellness and lifestyle की requirement and demand of the body is different. What we can practice is of course different, and most importantly, every disease also has a different flare-up. शादी से पहले, डिवोर्स के दौरान, मिड लाइफ क्राइसिस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सारे स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं जिस वक्त सोरियासिस या कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी बढ़ सकती है. स्मोकिंग, जब वो जिंदगी का उम्र का पढ़ाव होता है, जब हमें पैसे कमाने की स्ट्रेस होता है, काम ज्यादा करने का होता है 30s में 40s में, तब सोरियासिस बढ़ जाता है. So I wanted to show this slide to tell you that lifestyle will be dependent on your age and you need to age accordingly and you need to bring those kind of changes which will help you and your health best. Next please. Because psoriasis can affect an infant, it can affect a geriatric, right? So biology of aging is known. उसी तरह हमारे शरीर में हमारी पल्स रेट, हार्ट रेट, लिवर, हर चीज की कैपेसिटी उम्र के साथ साथ बदलती रहती है, ऑफ कोर्स घटती रहती है. हाल फिलहाल में अगर आप सबने, मैं तो बहुत न्यूज पढ़ती हूँ, अगर आप लोगों ने भी किसी ने पढ़ी होगी, वो जो यंग लड़का है जो 16 करोड़ रुपए हर महीने अपनी शरीर पे खर्च के अपनी बॉडी को 42 से 16 पे लाना चाहता है उम्र पे, एंड ही इज ऑलरेडी बिकम 20 ईयर ओल्ड. सो आज की डेट में साइंस कहीं भी पहुंच चुकी है, मगर बायोलॉजी ऑफ एजिंग जो बेसिक्स हैं वो सेम रहेंगे. और लिवर, आवर स्किन, आवर सेल्स विल कीप एजिंग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मृदुला जी. And role of metabolism is very crucial in autoimmune diseases, especially talking about psoriasis. Psoriasis में हमें अपना वजन कम रखना बहुत जरूरी है. We cannot be a fatty. हम मोटू हो ही नहीं सकते अगर हमें psoriasis है. जितने मोटू हम होंगे उतना हमारे शरीर में ओमेगा 369 फैटी एसिड और इन सब के बैलेंस की वजह से we will have a more and more flare up always. So
eating food and breath both lead to metabolism. So we all know we are in the most polluted country of the world, particularly New Delhi के जो वासी हैं, हम सबको पता है हमारा pollution levels highest है compared to people of other countries and developed countries. So please जिन्हें autoimmune diseases है उन्हें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, अपने पास नजदीकी ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स जरूर होने चाहिए. Next please. Role of food is very important. As air, we can of course work only to a certain extent. मैं भी दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में काम करती हूँ, so I'm not able to leave and go to the hills and stay क्योंकि मेरा क्लिनिक अब यहाँ पे है. So everybody will have to work according to, हमें उसी शहर में रहना पड़ेगा जहाँ हमारी आमदनी है, जहाँ हमारा काम है, जहाँ हमारी फैमिली है, right? बट खाने का हम ये देख सकते हैं कि हम एटलीस्ट हाई शुगर्स ना लें, प्रोसेस्ड फूड्स ना लें, प्रिजर्वेटिव्स कम लें, डीप फ्राइड चीजें कम लें. ये चेंजेस हमें लाने पड़ेंगे. हमें समोसा और चिप्स नहीं खाने हैं, हमें ब्रेड सफेद कम खानी है अगर हमें सोरियासिस है, या अगर हम अपनी हेल्थ को हेल्दियर रखना चाहते हैं, इवन अगर हमें सोरियासिस नहीं है, या हमारे पेरेंट्स या भाई बहन को है और हम चाहते हैं हमें ना हो. इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली एक स्टडी है जिसमें ये प्रूव किया गया है, एलियम कंटेनिंग फूड आइटम्स ट्रिगर ऑटोइम्यून डिजीजेस. सो एलियम कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं 4. ये मैं आपको चैट बॉक्स में भी लिख देती हूँ. जो भी लोग यहाँ पे हैं जिन्हें जो सोरियासिस से अफेक्टेड है, तो दे कैन टेक बेटर केयर. ये एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट ऑल्सो मैं इसमें बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ, और मेरे जितने भी पेशेंट आते हैं उनको मैं ये कहती हूँ, और उनको ऑफकोर्स बुरा लगता है, मगर मैंने खुद नोट किया है फर्क. ये चीजें आपको डाइट में अवॉइड करनी है जो हमने चैट बॉक्स में भी लिखी है, विच इज टोमेटो, अनियन, गार्लिक, पेपर, मैंगो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडियन फेवरेट चाय. डॉक्टर्स लैंग्वेज में चाय इक्वल टू पेप्सी कोला होती है. कैफीन एंड टैनिन्स इन सबसे ट्रिगर होती है बॉडी में ऑटोइम्यून डिजीजेस. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है सोरियासिस. मैं उस इंट्रोडक्शन पे नहीं आना जरूरी समझती हूँ कि सोरियासिस क्या है, क्योंकि मुझे पता चला है कि एनजीओ बहुत एक्टिव है और दक्षिण में बहुत बारी अलग अलग डॉक्टर्स को बुला के हर वक्त प्लेटफॉर्म रखा है. मगर अगर आप में से कोई मुझसे कोई बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहे एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट, तो मैं जरूर बताना चाहूंगी. आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या रेज हैंड कर सकते हैं. वी कैन क्लिक फ्रॉम हियर. नेक्स्ट प्लीज मृदुला जी. हमें बॉडी में बेसिकली इंफ्लेमेशन कम करनी होती है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में, इसीलिए हमने जो चैट बॉक्स में आपको 5 चीजें लिखी हैं और आपको बता रहे हैं कि जितना आप हेल्दी खाएंगे उतना आपकी हेल्थ बेहतर होगी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मृदुला जी. I'm not able to do यहाँ से. Yeah. So see, genes तो हम लोग बदल नहीं सकते. Genes के अंदर extrinsic, intrinsic factors का ही सिर्फ हम ध्यान रख सकते हैं. Intrinsic मतलब आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या सांस ले रहे हैं, एक लेवल तक आप इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं. मगर जो अंदरूनी जीन्स है उसका कोई ध्यान नहीं रख सकता. बस यही रख सकता है कि मुझे बहुत सोरियासिस और मेरे बॉयफ्रेंड को भी है, तो मैं उस बॉयफ्रेंड को छोड़ के किसी और से शादी करूं, है ना. उसके सिवाय हम और कुछ नहीं जेनेटिकली देख सकते अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए. बट ये बहुत लाइटर नोट पे मैंने आपको कहा, क्योंकि ये सब करना बहुत मुश्किल होता है. बट यस, जेनेटिक फैक्टर इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. जीन जितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हम उसको कंट्रोल सिर्फ एक ही माध्यम से कर सकते हैं कि हमारी डाइट और हमारी हेल्थ का हम ज्यादा ध्यान रखें. स्किन को बिल्कुल मॉइस्ट रखें, हाइड्रेटेड रखें अंदर से बाहर. अंदर से बाहर हाइड्रेशन का मेरा कहने का ये मतलब है पानी ज्यादा पीजिए. मैं दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीने की मतलब मेरा नेचर है एज अ स्किन डॉक्टर. स्किन हेल्थ बहुत ज्यादा मैटर करती है विद हाइड्रेशन लेवल. आप ओमेगा 3, 6, 9 अपनी डाइट में बढ़ाएं, सप्लीमेंट ले सकते हैं. ओमेगा 3, 6, 9 हमें फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स वगैरह से मिल जाता है. बहुत जरूरी है कि हमने जो आपको चैट बॉक्स में 4 चीजें कही जो बहुत मुश्किल है, उन सबको इंडियन खाने में होना ही होता है. टमाटर के बिना खाना बड़ा कम बनता है, मगर आप अपना उसके खाना उसके बिना खाएं, और मतलब कम से कम खाएं इन आइटम्स को. एटलीस्ट फ्रेश फॉर्म में, सैलेड में बिल्कुल ना खाएं अगर आप सोरियासिस से ग्रस्त हैं. नेक्स्ट प्लीज. पेट को कम रखिए, ओबेसिटी को कम रखिए, होलिस्टिक अप्रोच रखिए. अल्कोहल और स्ट्रेस को जितना कम रखेंगे, रेगुलर अपने ब्लड टेस्ट रखेंगे. तो मेरे तो बहुत पेशेंट्स हैं जिनका सोरियासिस एक छोटा सा पैच रह जाता है, जिसकी वजह से ना उनको कोई कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ना उनको कुछ ऐसा होता है कि डॉक्टर मैं मैरिज नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं सोशली एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ या हो पा रही हूँ. तो वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाती है. वो ऐसी जगह पे हम छोड़ देते हैं सोरियासिस को कि जो कपड़ों में कवर्ड हो जाए, तो सिवाय आप और आपके पार्टनर के या फैमिली मेंबर्स के और किसी को पता भी ना हो कि आपको सोरियासिस है. नेक्स्ट प्लीज. बट किसी को भी अगर सोरियासिस है भी, और किसी को भी ऐसी जगह पे भी सोरियासिस है जो एक्सपोज्ड है, मुझे नहीं लगता उससे आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत है. 1 सेकेंड, सॉरी.
तो सॉरी, मेरे घर से मैसेज था, मृदुला जी और मम्मी कभी नहीं करती हैं, उनको पता है स्टॉक के बारे में, तो यही पूछ रही थी। मेरी मदर रिटायर हुई आरएमएल हॉस्पिटल से, वो भी डॉक्टर हैं। तो आई एम सॉरी अबाउट द डिस्टर्बेंस। सो देखिए, स्ट्रेस पे आ जाते हैं। स्ट्रेस इन्हीं चीजों से बनता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रेस लिया है, हम सबने ही लिया है। सो मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये किया, जो चीज मुझे स्ट्रेस देती है मैं उसी वक्त उसको हैंडल करके भूलना पसंद करती हूँ। तो ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स अगर मेरे घर से फोन आता है, मैं कितनी भी बड़ी सर्जरी या कुछ भी बड़ा से बड़ा वीआईपी मिनिस्टर को देख रही हूँ या मिनिस्टर के साथ या किसी भी वीआईपी के साथ भी हूँ, तो अगर घर से फोन आता है तो मैं अपना काम छोड़ के पहले बात कर लेती हूँ, मेरे दिमाग में ना रहे। So with aging parents, I think that's a worry which many of us have. So मेरी राय है कि आप अपनी लाइफ में जो भी आपका स्ट्रेस पॉइंट्स हैं या कुछ भी है, आपका डॉग्स, आपका फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, वाइफ, स्पाउस, जो भी, तो आप उन चीजों को उसी वक्त हैंडल करें। So ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये कॉस्मेटिक क्वेश्चन है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू सोरियासिस, वील एड्रेस इट लेटर। अब्दुल मलिक ने कुछ पूछा है। एंड अब्दुल जी, मेरा कल का ही एक आर्टिकल है लेजर हेयर रिडक्शन का ऑन द प्रिंट करके आता है, तो अगर आप गूगल पे भी डालेंगे डॉक्टर दीपाली भारद्वाज द प्रिंट, तो आप उसका आर्टिकल पढ़ सकते हैं। आपका क्वेश्चन का आंसर आपको वहां पे बहुत अच्छे से मिल जाएगा। So let's talk about psoriasis and stress, how to handle it. Psoriasis एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है, लाइक डायबिटीज। सो हमें उसके साथ रहना है। आपको जो भी चीज पसंद हो, आपको गाना गाना पसंद हो, आपको गाना सुनना पसंद हो, आपको नाचना पसंद हो और आप बहुत गंदा नाचते हो, तो कमरा बंद करके, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए 5 मिनट नाचने की। आप नहाते हुए नाचे, मगर देख लीजिए कि नीचे फ्लोर गीला ना हो। कुछ भी ऐसी चीज करें जिससे आपकी बॉडी में रिलैक्सिंग हार्मोन 5 मिनट के लिए मिनिमम रोज रिलीज हो। So we need to practice our faith, we need to relax, we need to exercise and all that. So next, please. So anti-aging food. Anti-aging food is what is needed. Anti-aging food से मेरा मतलब है healthy food. तो ओमेगा 369 ऑफ कोर्स रिच आपको सी फूड में ही मिलता है, वेज में बहुत कम चीजों में मिलता है, जैसे हमें लोटस स्टेम में मिलता है, हमें फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स में मिलता है, पालक में मिलता है, जो पूरे साल नहीं मिलती। मगर फ्रूट्स आप रोजाना अलग अलग रंग के कोशिश करें जरूर खाने के। Try and include in your diet red, yellow, green, purple. All of these 4 colors have different mineral content. अगर आप अल्कोहल के शौकीन हैं मगर आपको सोरियासिस है, तो हफ्ते में एक दिन 1 ग्लास वाइन इज ओके, और इन मॉडरेशन 1 ग्लास विस्की। प्लीज डोंट ओवरडू, डू नॉट ड्रिंक डेली, रिड्यूस योर स्ट्रेस, मेक अ हॉबी। आप किसी भी उम्र में गिटार सीख सकते हैं, सितार सीख सकते हैं, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जो आपके शरीर को, आपके मन को, दिल को, दिमाग को रिलैक्स करे। मैंने ही रिसेंटली एक चीज सीखी है जिसके अंदर हम सोने से पहले डिसोसिएशन की मेडिटेशन कर सकते हैं। जब हम लेटते हैं रात को पूरा दिन थक के, तो जब आप बेड पे लेटे तो आप अपने आप को बार बार, एक तो फोन ना देखें आधे घंटे के लिए सोने से पहले, एटलीस्ट 20 मिनट के लिए, 11 बजे 12 बजे जो भी आपका स्लीपिंग टाइम है, एंड ट्राई एंड डू सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन जो आपको अच्छी नींद भी देगा, सोने में भी हेल्प करेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप उससे अपने माइंड को रिलैक्स कर पाएंगे। यू विल वेक अप फ्रेश, यू विल सी अ डिफरेंस इन योर सोरियासिस विद दीस चेंजेस व्हिच वी आर ट्राइंग टू टेल यू इन द लाइफस्टाइल टुडे। डेली फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप 70 साल के हो या 7 साल के हो, हर बॉडी को, हमने जैसे पहली स्लाइड में देखा, हमें फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है। ऑफ कोर्स हर एज में अलग लेवल की मगर जरूरत है। नेक्स्ट प्लीज। एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है ऑटोइम्यून डिजीजेस में, और अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई भी बेसिक से बेसिक एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट साल में 10 महीने हम ले सकते हैं, जब तक हम दिल्ली या नॉर्थ इंडिया वाले पोल्यूशन में है। अगर हम हिल्स या किसी ऐसी जगह है जहाँ पोल्यूशन कम है, तो हम उसको साल में 6 महीने ले भी तो चलेगा। एंटीऑक्सीडेंट का ये रोल होता है कि हमारे शरीर में जो भी केमिकल्स आ रहे हैं, फ्री रेडिकल्स डैमेज कर रहे हैं, जो सेल्स को खराब कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट खाने से उस सेल को वो धो देते हैं। जितने हमारे सेल्स बीमार होते रहते हैं, उतना हमारा सोरियासिस के फ्लेयर अप्स देखे जाते हैं। So antioxidant will definitely reduce flare ups of psoriasis on the body. Next please. अगर आपको कोई भी रैश या कुछ आता है सोरियासिस के टाइम पे, अभी आपका सोरियासिस कंट्रोल्ड है, तो ये स्लाइड हमने इसलिए लगाई थी कि लैक्टोकैलामाइन, चिल्ड दही खाना और दही लगाना, बर्फ लगाना वहां पे, और एलोवेरा जेल और लैक्टोकैलामाइन सूद करते हैं, स्किन की एलर्जीज को घटाते हैं।
तो ये काफी बारी होता है कि सोरियासिस में क्रॉस इन्फेक्शन बैक्टीरिया और फंगस देखी जाती है बारिशों के मौसम में, पसीने के मौसम में। सो ये मैंने स्लाइड इसलिए लगाई कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट जाने से पहले ये 4 चीजें जो घरेलू नुस्खे जैसी हैं वो आप कर सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट प्लीज। या सो अपनी डाइट पे मैं बार बार आऊंगी। लाइफस्टाइल में सबसे जरूरी है अच्छे से ड्राई फ्रूट्स, दही, डार्क चॉकलेट, ऑलिव ऑयल, ये हमारी डाइट को अंदर से स्ट्रॉन्ग करते हैं। ओमेगा 369 को बढ़ाते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स को बढ़ाते हैं, स्किन हेल्थ, टिश्यू हेल्थ, सेल हेल्थ को बेटर करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। So to sum it up in the lifestyle changes, you need to stay hydrated, you need to quit smoking, get an adequate sleep, do some sort of a meditation, do some yoga, you need to face it, and yoga is important. Eating healthy, keep stress at bay, use a moisturizer, देखिए, and sunscreen important है क्योंकि photodermatic reactions भी होते हैं। आपको psoriasis बॉडी में कहीं है, चलो कंट्रोल हो गया, या नहीं कंट्रोल हो रहा है, परेशान है, आप फेस पे बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको psoriasis हो, तो उससे बचने के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सनस्क्रीन लगाते रहें। बहुत ज्यादा पानी से अपने आप को हाथ धोना, चेहरा धोना ना करें। ब्यूटी पार्लर के ट्रीटमेंट्स और तरह तरह की ट्रीटमेंट जब आपको ऑटोइम्यून डिजीज है वो आपको ज्यादा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। So great, my presentation is over, but I'm here. So if anybody has any questions, please feel free to ask me, and we can discuss it here related to psoriasis and autoimmune disorders, please. Sure. I definitely have certain questions, Dr. Dipali, from the community, but I would like those who are attending right now, I would like them to ask first. आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, और आप में से अगर किसी ने मेरे को ऑलरेडी क्वेश्चंस भेजे हुए हैं तो मैं वो डायरेक्टली मैम से पूछ लेती हूँ। हाँ, प्लीज गो ऑन। जब तक मैम ये टाइप करते हैं या कुछ पूछते हैं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कम्युनिटी के थ्रू पूछना चाहूंगी। मैम, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट he is a 32-year-old man, and he is living with type 2 diabetes. He is asking if his blood sugar levels will impact the psoriasis and its treatment and management. Come again, फिर से बोलेंगे आप? Ma'am, he's a 32-year-old man, and he is asking if his blood sugar levels will affect his psoriasis treatment and management. Treatment and management, yes, can get affected. But आप क्या मतलब, मेरे को डायबिटीज देखिए ऑटोइम्यून डिजीज है अगेन, तो जिन लोगों को सोरियासिस होता है उनको डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, थायराइड, अलग अलग और ऑटोइम्यून डिजीजेस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये उम्र के साथ आने के चांसेस दूसरे लोगों से डबल या 3 टाइम्स होते हैं। तो उसका आपकी ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी लाइफस्टाइल पे जो आप कर सकते हैं वो आपकी ड्यूटी है। तो आपको डायबिटीज कंट्रोल करना ही करना है, आपको अपना डाइट कंट्रोल करना है, अपनी हेल्थ बेटर करनी है, एक्सरसाइज करनी है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, हाइड्रेटेड हो रहे हैं, तो आपका डायबिटीज ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा। डायबिटीज और सोरियासिस का उससे ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है। ओके, एंड फॉर कंट्रोलिंग सोरियासिस ऐसा कोई होम रेमेडी नहीं है जी कंट्रोल सोरियासिस का, मधुर जी। It is only simply keeping yourself hydrated. So as discussed, inside out hydration is important. You can oil your body. जब एक बार आपका psoriasis control में आ जाए, the best oil which I've seen is apricot oil. And egg and carrot are good for psoriasis. Yes, egg and carrot is okay, no harm. But what is good, we have already discussed in the presentation, which is being recorded, so you can see. ब्लैक मार्क जो बच जाते हैं, पिगमेंटेशन जो उसको हम डॉक्टर्स पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन करते हैं, इसको लाइट करने के लिए हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, जैसे कि टैक्रोलिमिस। वो हम सोरियासिस की बीमारी में भी देते हैं, तो उससे काफी निशान हल्के होते हैं। लेजर और केमिकल पील्स भी कर सकते हैं अगर किसी एक्सपोज एरिया में हो, स्पेशली लेडीज के लिए हो। एंड एप्रिकॉट ऑयल वाज व्हाट वी सेड, मधुर जी। So those kind of anti-inflammatory creams will help in removing the marks. Of course, there is laser, there is chemical peels and other options, especially for ladies. But I would say कि हमें पहले बीमारी को कंट्रोल करना है, उसके बाद निशान की भी बात करनी है, और वापस फ्लेयर अप, वापस अटैक्स ना आए। तो जो लाइफस्टाइल हमारा आज का टॉपिक है, तो लाइफस्टाइल को नहीं भूलना है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग डिजीज है, एज आई लाइक टू ऑलवेज से इट। सोरियासिस इज अ लाइफ लॉन्ग डिजीज। एक बार कंट्रोल हो जाए, उसके बाद भी हमें मेंटली पता होना चाहिए कभी भी आ सकता है। Right. Ma'am, one question is, what role does smoking play in psoriasis, and should people with psoriasis quit smoking? Although everyone quit,
but हाँ जी, प्रेजेंटेशन में हमने ऑलरेडी कवर किया, स्मोकिंग एंड स्ट्रेस विल ट्रिगर, उससे नए लीजन ज्यादा जल्दी आएंगे। जो लोग स्मोकिंग करें, स्ट्रेस ज्यादा लें, अल्कोहल ज्यादा पिए, जो हमने डाइटरी आइटम्स चार्ट बॉक्स में लिखा उसको नहीं छोड़ पाए, उसको सैलेड में रोज खाएं, तो उन चीजों से आपको नए नए पैचेस आते रहेंगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक तरफ आप दवाइयां खाएंगे, दवाइयां लगाएंगे, मगर दूसरी तरफ इन्हीं चीजों से आपको नए पैचेस आएंगे। बेसिकली सोरियासिस जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, सेल टर्नओवर टाइम को बढ़ा देता है। तो जो नॉर्मल 4 से 40 दिन में हमारी नीचे की स्किन को ऊपर आना था, इसमें 4 दिन में ऊपर आ जाती है। तो हमें पैचेस दिखाई देते हैं जो भद्दे लगते हैं, जो व्हाइट कलर के पैचेस होते हैं। अगर आपको उनसे दिक्कत नहीं है तो आप स्मोक करिए, नहीं करेंगे तो अपने आप कम होंगे। आप पोल्यूशन में रहते हैं, यहाँ की जो सांस है उसमें लंबी सांस ले लो, वो भी सिगरेट जैसी है दिल्ली की। तो हमारी शरीर पे वैसे ही एक्सटर्नली पोल्यूशन आ ही रहा है, सिगरेट आ ही रही है। तो अपने आप को जितना हेल्दी रखें, ऑक्सीजन लेवल शरीर में बढ़ाएं, तो आपको खुद लगेगा कि आपका सोरियासिस कम हो रहा है। मैम एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, डू वी हैव टू कंट्रोल मिल्क इनटेक इन सोरियासिस? नो, दैट्स अ मिथ। और एनी डेयरी प्रोडक्ट? No, it's a myth. Milk has no role. See, I'll tell you, milk का भी ना सोर्सेस का कभी कभी पता नहीं होता। हम लोग कभी न्यूज में पढ़ते हैं कि कुछ मिल्क ऐसा आया है जिसके अंदर ईस्ट्रोजन या हार्मोन्स या कुछ निकले हैं, तो वो हमें पर्टिकुलर रखना है अपने सोर्स का। अगर सोर्स ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। Okay. And ma'am, there's another question which is asking, like, are there any alternative therapies that may be helpful for psoriasis, like acupuncture or anything which will reduce your stress, as discussed, and anything which will hydrate your skin will help you. जैसे स्टीम भी लेना सोरियासिस के लोगों के लिए once or twice a month is very good, क्योंकि वो एक तरह की मॉइस्ट हीट क्रिएट करेगा, तो स्किन अंदर से हाइड्रेट होगी। तो स्टीम भी लेना बहुत अच्छी चीज है। सोना नहीं इतनी अच्छी, मगर स्टीम ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो वेट हीट देगा बॉडी को। दूसरी चीज तो बहुत अच्छी है, वो विल बी आयुर्वेदिक मसाजेस, बट ऑयल विल बी प्रेफरेबली एप्रिकॉट, ज्यादा फ्रेग्रेंस स्मेल वगैरह कुछ नहीं। अगर आपको मतलब जीरियाट्रिक स्किन में स्पेशली, जो बॉडी बहुत ड्राई होती जाती है, एक्यूप्रेशर या कुछ भी आप करिए, आप गाना गाएं या आप एक्यूप्रेशर कराएं या आप हॉबी पालें या आप कुछ भी ऐसी चीज करें, कुकिंग करें, गार्डनिंग करें। मुझे फूलों का शौक है, मैं अपने यहाँ पे फूलों को उगाती हूँ, फिर उनको सजाती हूँ। तो सबका अपनी अपनी हॉबीज होती हैं। जो भी आपकी हॉबी हो उसको कल्टीवेट करें। जिनको भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है या जिनको भी जिंदगी में आई थिंक बहुत मेहनत करनी है, बहुत जरूरी है हॉबीज रखना। ये मैं पर्सनली मानती हूँ और सबको कहने की कोशिश करें। Ma'am, would you like to suggest any supplements or vitamins for people living with psoriasis? As discussed in the presentation, it has to be only because we are talking generally. मेरे सामने पेशेंट नहीं बैठा है, तो मैं सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स कहूंगी। एंटीऑक्सीडेंट जैसे कैप्सूल एंटॉक्सिड HC आता है मार्केट में, विच इज वेरी गुड बेसिक, या बीटॉक्सिड HC आता है। कोई भी एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट, और हमने प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया कितने महीने और डोजेज। Okay. I think, ma'am, I think we had like a lot of questions that have been answered. Yes. I just want to ask, anyone else would like to ask any kind of question, or shall we close this session? Which omega supplement, Verma ji, you can take any omega supplement which is omega 369, and मेरी हर एक को यही राय होती है कि ब्रांड बदलते रहिए। जॉनसन्स का जो हमने अभी एपिसोड देखा था कि उसका शैम्पू जो हम डॉक्टर्स खुद भी यूज करते आए हैं और कितने ही हजारों पेशेंट को यूज कराते आए हैं, तो मेरी यही राय होगी कि आप प्लीज ओमेगा का जो भी सप्लीमेंट खरीदें 2-3 महीने के लिए वो कंपनी, फिर 2-3 महीने कोई और, फिर 2-3 महीने कोई और, ताकि कंपनी का साइड इफेक्ट हमें ना पड़े। Right. And also if you are not a person जिसको कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नॉन वेज कैप्सूल से, क्योंकि अच्छे ओमेगा आते ही नहीं वेजिटेरियन ओरिजिन, तो वेजिटेरियंस के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अगर आप नॉन वेज लें तो शार्क लिवर ऑयल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा। And ma'am, is it very available. much available? Easily available. Easily. Okay, ma'am. Yeah. अब तो सब कुछ अवेलेबल होता है मृदुला, बस हमें खुश रहना है, नॉलेज रखनी है, हर चीज हो जाती है ना। Unfortunately, ma'am, the stress is something this we don't want, but it just by default comes in our lives. No, we have to cultivate a hobby, mark my words, and do it every day. Hobby could be anything. Absolutely, ma'am. I think this has been a wonderful session, ma'am. Thank you so much, because these are questions that, it
just turns out and we don't have someone to answer, get the answers from. But such sessions actually help the community to get their answers from the experts themselves. So thank you so much. Thank you so much, Dr. Dipali. Thank you for having me, and all the best to everybody here today. Thank you. Thank you so much from Dakshama Health and community of psoriasis supporters. Thank you, ma'am.